गुड मॉर्निंग। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? और टेस्ट सबका कल इंटरव्यू हो गया? आकांक्षा, बहुत दिनों बाद क्लास में दिख रही हो। परसों नहीं थी। अच्छा, भूल जाते हैं इतनी जल्दी, भूलता नहीं। So yesterday in lecture I told you about the email, architecture of email, different frame formats and the protocol used in email. In that continuous process I am going to discuss deeply SMTP. ठीक है, तो हेडिंग है ये पीपीटी में थोड़ी सी गड़बड़ है, SMPTP नहीं है, SMTP है।
I referred this particular PPT, but इसकी हेडिंग यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, SMPTP नहीं है, दिस इज SMTP. So before email protocol are set of rules that help to client to properly transmit the information to or from the mail server. I already told you earlier during the discussion of TCP IP model and OSI model during the working and responsibilities of application layer that the mail transfer or the message transfer is the prime job or the responsibility of application layer, which is carried out by different protocol. A lot of protocol. We are going to discuss a lot of protocol. Some of you are seeing in your screen SMTP, POP, Post Office Protocol, and POP3, Post Office Protocol version 3. But still, except these protocol, many more protocols are used during email feature of any application or any product as well as any file transfer mechanism, जिसमें आपका SNMP है, Telnet FTP, I already told you, MIME, I also given you a brief introduction about MIME, IMAP, yesterday I discussed about IMAP, IGMP, बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं. So first of all, IMAP you are seeing in your screen, third protocol IMAP, IMAP. So first of all, going to discuss about the SMTP. This is SMPTP, ये गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में SMTP है. So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It was first proposed in 1982. It is standard protocol used for sending email efficiently and reliably over the internet. Before the existence of email, this protocol is already used for transferring the small messages to client to client services, and sometimes client server 3-tier architecture also used in that area. The key points are SMTP is application level protocol. I already told you this is the prime feature, main responsibility, duty of application layer to transfer your message from one client to another, one machine to another by client to client or the client server architecture. SMTP is connection oriented protocol. So whenever you are going to transfer the message through any machine or the mechanism or the server or any distributed, as also understand about the internet or WW, SMTP is based on connection oriented services. Connection oriented protocol means first of all you must establish connection between two or more clients or over the help of server also. SMTP is text based protocol. This is the protocol which is text based. It handles exchange of message between email server and email server over TCP IP network, and also nowadays used as OSI model. OSI model में भी ये यूज होता है, लेकिन शुरुआत में because I already told you TCP IP model is more ancient than OSI model. So first of all, जिसकी जो भी सर्विसेज यूज होती थी in context of email, that was TCP IP network. Apart from transferring email, SMTT नहीं है, SMTP है. जहां पे भी ये कहीं पे पीपीटी में जहां पे लिखा होगा गड़बड़ उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा और सही प्रोनाउंस कीजिएगा. SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMTP also provide notification regarding incoming mail. This facility is also provided with the help of SMTP. I surprised अभी तक जितने भी बच्चों ने मुझे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का नाम दिया है, किसी ने भी मेल सर्वर नहीं बताया मुझे, बल्कि मेल सर्वर एक बहुत अच्छा
प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर हो सकता है फॉर योर मेजर प्रोजेक्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर मेजर प्रोजेक्ट। और मेल सर्वर भी अगर आपको रेफर करना है तो जीमेल को रेफर करते हुए ये अभी तक खुला हुआ है, कोई भी चाहे तो अभी इसके बारे में और पढ़ करके इसको एज अ मेजर प्रोजेक्ट चूज कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। और मुझे अगर आप सेटिस्फाई कर देंगे अपने आर्गुमेंट से और किस तरह से आप इसको बनाएंगे, फीचर्स क्या क्या रखेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं ये प्रोजेक्ट आपको जरूर अलॉट कर दूंगा। ठीक है, लास्ट ईयर ये मेल सर्वर नहीं बना हुआ है। लास्ट ईयर क्या, लास्ट प्रीवियस 2 इयर्स में भी ये मेल सर्वर नहीं बना हुआ है, इसके पहले बना हुआ है मेल सर्वर। तो मेल सर्वर अगर आप चाहेंगे तो ऑप्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उनको मैंने थोड़ा सा क्लू दिया हुआ है। So when you send email, your email client send it to your email server. This is in case of when you are going to client server architecture. But also there is a small network architecture, client to client you are sending message. Then it also works, which further contact the recipient mail server using SMTP client. There are some SMTP commands which will be discussed in later part of this introduction. These SMTP commands specify the sender's and receiver's email address along with the message to be sent. The exchange of command between servers is carried out without intervention of any user. In case message cannot be delivered, an error report is sent to the sender, which makes SMTP a reliable protocol. Sometime a question may raise in the compulsory part of your paper and semester paper, examination paper, जो 3 नंबर के छोटे क्वेश्चन होते हैं कि why you can say that SMTP is a reliable protocol, or SMTP is a reliable protocol, justify with an example. So you can quote that particular answer and this particular scenario, that message cannot be delivered and error report is sent to the sender, which makes SMTP a reliable protocol. Okay, sending a single message to one or more recipients, it is a prime or optimum duty or responsibility of SMTP. Sending message then include text, video, voice or graphics. These features also provide a good and better protocol in context of email. जब आप ईमेल फैसिलिटी की बात करते हैं तो इसको ये और ज्यादा सेफ और स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटोकॉल बना देता है. Sending message to user on network outside the internet. I already told you, you can also use an as intranet or your local client. उसमें भी आप इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं. और इसमें जो मैंने आपको पहले बताया ईमेल आर्किटेक्चर में आगे भी डिस्कस करेंगे. दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसमें यूजर एजेंट होता है यूए और दूसरा होता है मेल ट्रांसफर एजेंट, जिसकी वर्किंग हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईमेल आर्किटेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और जो मेल गेटवे होता है ये पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइज करता है, वो हैंडल करता है. देयर इज मेल गेटवे. SMTP commands. There are some SMTP commands. Hello, this command initiates the SMTP conversion. eHello, this is an alternative command to initiate the conversion. eSMTP indicates that the sender server want to extended SMTP protocol. This is extended version of SMTP. तो जब eHello की बात करते हैं, दिस इज एक्सटेंडेड SMTP प्रोटोकॉल. और हेलो का काम क्या होता है? हेलो इज दस इनिशिएट द SMTP कन्वर्जन. इनिशिएशन, ट्राई, दिस इज ट्राई. जब भी आप कमांड देते हैं ट्राई करने के लिए कि आपका कनेक्शन और कन्वर्जन ये अब प्रिपेयर है कि नहीं फर्दर प्रोसीजर के लिए. मेल फ्रॉम, this indicate the sender's address. RCPT2,
This is recipient to, mean this directly identifies the recipient of the mail. In order to deliver similar message to multiple user, this is हम already told you, whenever you are following or using client server architecture where more than one client, the message will be sent to that client by means of server. So multiple user, this command can be repeated multiple times. Size, this command let the server know the size of attached message in bytes. Data, the data command signifies that a stream of data will follow. Here stream of data refers to the body of the message. Stream of data means the body of the message जो कि आप लिखते हैं. Quit, this command is used to terminate the SMTP connection. I already told you during the ट्रांसपोर्ट लेयर वर्किंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर जब मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था, देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन एनी कनेक्शन ओरिएंटेड मैकेनिज्म और द प्रोटोकॉल, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इज द फर्स्ट प्रोसीजर. दिस इज द प्राइम जॉब ऑफ एनी लेयर. दिस इज डील्ड विद द ट्रांसपोर्ट एज वेल एज सेशन लेयर. सेशन लेयर भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. देन message transfer procedure is going on. After the entire message is transferred to the dedicated recipients, then connection closure, then the termination of connection procedure is carried out. आप किसी भी कनेक्शन को सिर्फ इस्टेब्लिश करके छोड़ नहीं सकते, बिकॉज रिसोर्स, बैंडविड्थ एंड द चैनल एलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल प्रोसीजर्स और कॉन्सेप्ट होते हैं ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर प्रोसीजर. तो इसलिए SMTP I already told you, this is connection oriented procedure, connection oriented protocol used in connection based wire oriented services. Then as the other protocol or the transport layer protocol, this is also compulsory to close that particular connection which is established. So quit command is used to terminate the SMTP connection. Verify, VERFY, this command is used by the receiving server in order to verify whether the given username is valid or not. EXPN, it is same as verify except it will list all the user name with a distribution list. With a distribution list. एक्सपेंशन है, एक कमांड होता है एक्सपेंशन, उसके ही 4 लेटर लिए गए, 4 या 5 जैसे भी जहां पे आपका काम होता है, जहां पे जिसकी जरूरत होती है, ये लेटर उसी हिसाब से यूज करके कमांड आपके बना लिए जाते हैं. तो इस कमांड के थ्रू आप उस लिस्ट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं. दिस इज फॉर एक्सपेंशन. होल्ड फॉर सम टाइम. वेट फॉर अ सेकेंड. ओके. Expansion command. So SMTP, the working of SMTP is the same as the email. I already told you, इसमें भी आपका एक यूजर एजेंट होता है, मेल ट्रांसफर एजेंट होता है, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ मेल गेटवे. ठीक है. यूजर एजेंट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द मेल ट्रांसफर एजेंट. दिस इज नोन एज क्लाइंट. जो यू कैन से दैट जो मिडिल मैन क्लाइंट या मीडियम क्लाइंट बाय विच यू रीच टू द मेल गेटवे. मेल गेटवे के बाद जाने के बाद वहां पे जो क्लाइंट साइड, एक्चुअल आपका दूसरा क्लाइंट साइड है, दोनों 2 साइड क्लाइंट जो आपका MTA होता है, ये दोनों एंड पे, दोनों क्लाइंट साइड पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. जो आपका सेंडर क्लाइंट होता है वहां पे
सेंडर क्लाइंट वर्क करता है और जो रिसीवर क्लाइंट होता है वहां पे रिसीवर क्लाइंट वर्क करता है एज अ मीडियम. क्लाइंट इज नॉट योर एक्चुअल यूजर. फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो क्लाइंट आपका होता है दिस इज नॉट योर एक्चुअल यूजर, दिस इज मिडिल मैन या एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, मीडिएटर होते हैं कि आपके मैसेज को फ्रॉम सेंडर एंड टू रीच एट द जो आपका मेल जो गेटवे आपका है मेल ट्रांसफर या मेल ट्रांसफर गेटवे या मेल गेटवे के थ्रू वहां पे कलेक्ट होता है. उसके बाद फिर से जो रिसीवर एंड का जो है क्लाइंट है वो एक्टिवेट हो जाता है एज द मीन ऑफ एमटीए. एमटीए दोनों साइड होता है, मेल ट्रांसफर एजेंट दोनों ही साइड होता है. और वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो एक्चुअल यूजर तक आपके मैसेज को पहुंचा देता है. तो वर्किंग सेम वही है जो आपकी ईमेल की होती है, जिसमें आपका ईमेल में भी यूजर एजेंट होता है, मेल ट्रांसफर एजेंट होता है, ठीक है. और जो रिसीवर साइड पे मैं आपका मैसेज जो हैंडलर होता है एट द रिसीवर एंड मैसेज एक्सेस एजेंट. तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है, पर्सन भी वही होते हैं जो इंक्लूड होते हैं, बस वर्किंग यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ठीक. नाउ कम टू द अनदर प्रोटोकॉल यूज्ड इन योर ईमेल दैट इज नोन एज IMAP. This stands for Internet Message Access Protocol. It was first proposed in 1986. There exist 5 versions of IMAP as follows. Original was IMAP, second was version 2 IMAP 2, then IMAP 3, IMAP 2 Business, IMAP 4. Key points for IMAP. IMAP allows the client program to manipulate the email message on the server without downloading them on the local computer. ये इसका प्राइम जॉब है. The email is held and maintained by the remote server. So it is not necessary to download the mail received from the client at your system. You can change at the server side remotely without downloading in your local computer. It enables us to take any action such as downloading, delete the mail without reading the mail. It enables us to create, manipulate and delete remote message folder called mailboxes. This facility is also provided by IMAP. Already its name says that Internet Message Access Protocol. तो ये रिमोटली ज्यादा वर्क करता है. IMAP enables the user to search the emails. ओके. आप कभी कभी जब देखते हैं कि बहुत पुराना मैसेज पड़ा होता है तो वहां पे एक सर्च का ऑप्शन रहता है. जीमेल में आप देखिए ऊपर सर्च का ऑप्शन रहता है, तो वहां पे आप कुछ कंटेंट्स डाल दीजिए या डेट डाल दीजिए, तो उसको सर्च की बना करके वो पूरे मेल बॉक्स में से मेल निकाल लाता है बाय द यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ रिमोटली उसको वर्क करते हुए पूरा मेल में ढूंढ करके जो बॉक्स है आपका इनबॉक्स बना होता है उसमें से ढूंढ के ले आता है. तो दिस फंक्शन और द प्रोसीजर इज कैरीड बाय द IMAP. It allow concurrent access to multiple mailbox on multiple mail server. ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल मेल सर्वर है तो ये कॉन्करेंट एक्सेस जो है आपका मल्टीपल मेल बॉक्स को भी फैसिलिटेट करता है. IMAP commands. The following are the IMAP commands. IMAP login. This command opens the connection. Capability. This command requests for listing the capabilities that the server supports. Excuse me. Wait for a minute. Capability. This command requests for listing the capabilities that the server supports. And OOP. This command is used
as a periodic poll for new message or message status updates during a period of inactivity. Select. This command helps to select a mailbox to access the message. Examine. It is the same as select command except no change to the mailbox is permitted. Create. It is used to create mailbox with a specified name. Some mail server provide a facility to change the name or the also provide the facility to create mailbox with your specified name by which you are able to identify. You can also use this concept in your own mail server by using that particular command. Delete. It is used to permanently remove a mailbox with a given name. There is also facility to change the name of mailbox by using the command rename. And log out. This command informs the server that client is done with the session. The server must send by untimed response before the OK response and then close the network connection. So these are the commands of IMAP. This is also used in your email. Now come to the another important protocol that is known as POP. POP stands for Post Office Protocol. First of all, why I am saying Post Office Protocol? The protocol POP is working same as the post office work in a physical manner. It is generally used to support a single client. There are several versions of POP, Post Office Protocol, but POP3 is the current standard. I already introduced this protocol POP3 in yesterday during the architecture of your email and the working of your email. What are the key points? Key points are POP is an application layer internet standard protocol. As the importance of SMTP, same importance is also provided by the POP, Post Office Protocol, in context of safely reach the message to the client. Client means you said that your receiver, your actual recipient. There may be more than one recipient. Since POP supports offline access to the message, this is the also key facility that it also support the offline access to the message, thus require less internet usage time. POP does not allow search facility. In order to access the message, it is necessary to download them. In contrast with IMAP, here POP doesn't allow to change it remotely without downloading the message in your local computer. It allows only one mailbox to be created on server. On the later part, we are also going to discuss or differentiate between POP and your IMAP. It is not suitable for accessing non-mail data. POP commands are generally abbreviated into codes of 3 or 4 letters. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे POP कमांड में, तो वो जो है ज्यादातर 3 और 4 लेटर से ही कमांड मिलकर के बने होते हैं. POP कमांड्स लॉगिन. देखिए एक बात और अच्छे से समझिए, जब भी आप जो भी लॉगिन पेज बनाते हैं तो जो लॉगिन और सबमिट और लॉग आउट ये जितने भी प्रोसीजर होते हैं जब आप मेल ट्रांसफर मैसेज ट्रांसफर करते हैं, देखिए मैसेज ट्रांसफर का मतलब ही यही हो गया कि जो आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं और एप्लीकेशन में जो फर्स्ट पेज होता है जो यूजर या तो साइन अप करेगा या साइन इन करेगा, तो जो साइन अप है साइन इन है यानी लॉग इन लॉग आउट और उसकी वैलिडेशन जो चेकिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके OSI मॉडल की लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज
को टेस्ट करने का। तो जो लॉगिन, अभी तक आपने जितने भी तीनों प्रोटोकॉल पढ़े हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो लॉगिन लॉगआउट जो प्रोसेस है वो पूरा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू और SMTP, IAMP या POP इन्हीं के थ्रू ही मैनेज होता है। तो ये बहुत अच्छे समझिए कि जैसे जैसे हम लोग ये डिस्कस करते चले जा रहे हैं, डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग उसको एग्जाम्पल से रिलेट करते चले जा रहे हैं, प्रोजेक्ट से रिलेट करते चले जा रहे हैं। तो ये आपके वाइवा की भी प्रिपरेशन होती जा रही है कि जैसे ही फर्स्ट पेज खुला और एग्जामिनर ने ये पूछा कि ये फर्स्ट पेज में आपने लॉगिन क्यों बनाया, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोडिंग कोई नहीं पूछता है, ना कोई कोड लिखवाएगा, ना कोई कनेक्शन कोड लिखवाएगा, ना कोई आपसे सिंटेक्स पूछने जा रहा है। वो आपकी नॉलेज को इसी पेज से जो आप दिखाएंगे, फर्स्ट पेज या फाइल अपनी दिखाएंगे, उन्हीं जो आपने लिखा हुआ है उन्हीं कमांड्स, जो आपके हेडिंग्स हैं, जो कंटेंट है, उन्हीं से ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे और वहीं से नॉलेज लेवल आपका चेक होता चला जाएगा। सो लॉगिन, दिस कमांड ओपन्स द कनेक्शन। stat it is used to display number of message currently in the mailbox. List, it is used to get the summary of messages where each message summary is shown. RETR, this command helps to select a mailbox to access the message. Actually this is retrieve command. Delete, it is used to delete a message. Reset, it is used to reset the session to its initial state. And quit, it is used to log off the session. Now come to the another important concept, कंपैरिजन बिटवीन पीओपी एंड IMAP। अभी तक हम लोग ने दोनों प्रोटोकॉल डिस्कस किए हुए हैं, अब दोनों में कंपैरिजन क्या है, क्योंकि पीओपी की भी फंक्शनलिटीज हैं और IMAP की भी फंक्शनलिटीज हैं। पीओपी जनरली यूज टू सपोर्ट सिंगल क्लाइंट, while IMAP designed to handle multiple clients. Why? सेकेंड पॉइंट से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैसेजेस आर एक्सेस्ड ऑफलाइन, दैट इज व्हाई इट्स नेम एज POP, पोस्ट ऑफिस। whenever we are examine or realizing the concept of post office, we directly understand it is offline mode। ज्यादातर इसमें ऑफलाइन मोड पे ही काम होता है और जो फिजिकल पोस्टमैन होता है वही यूजर एजेंट या क्लाइंट की तरह वर्क करता है, मेल ट्रांसफर एजेंट की तरह एज ए क्लाइंट साइड वर्क करता है, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर साइड हो। इन कंपैरिजन और द कंट्रास्ट, मैसेज आर एक्सेस्ड ऑनलाइन although it also supports sometimes offline method, but messages are accessed online. POP does not allow search facility, but IMAP offers ability to search email. All the messages have to be downloaded, while in IMAP it allows selective transfer of message to the client. Only one mailbox can be created on the server. Multiple mailbox can be created on the server with the facility of IMAP. No suitable for accessing non-mail data. It is also IMAP also suitable for accessing non-mail data, that is attachment. Non-mail data, all must you understand that अटैचमेंट किसी भी टाइप का अटैचमेंट क्यों ना, वो चाहे आपका टेक्स्ट हो, वॉइस हो, ग्राफिक हो, कोई वीडियो हो, जो कि अटैचमेंट में जाता है उसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं नॉन मेल डेटा। ठीक है, मेल डेटा जो एक्चुअल मेल में जाता है, जो आप बॉडी लिखते हैं मैसेज की, वो जो मेन कंटेंट होता है दिस इज नोन एज मेल डेटा, और जो अटैचमेंट में जाता है वो आपका नॉन मेल डेटा होता है। तो पीओपी डजंट सपोर्ट as any attachment. Next, POP commands are generally abbreviated into codes of 3-4 letters. IMAP commands are not abbreviated, they are full. जैसे कि स्टेटस अगर लिखा हुआ है तो ये फुल, ज्यादातर फुल में ही यूज होता है ये कमांड। It requires minimum use of server resources. Clients are
क्लाइंट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सर्वर। समझ रहे हैं? ये टोटली ये दैट्स वाई इसमें आपने जब पढ़ा भी था तो ये इंटरनेट कैपिटल आई वाला इंटरनेट लिखा हुआ है। इंटरनेट मेल या मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। Mails once downloaded cannot be accessed from some other location. IMAP allows mails to be accessed from multiple location. जो हम लोग मेल जो है कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं, मैनी टाइम जो एक्सेस कर पाते हैं। बहुत समझिए, बहुत ध्यान से, जो भी मेल सर्वर बनाएंगे या जिन्होंने भी इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की हुई है अपने यहाँ, तो वो ये जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन को जरूर यहाँ पे फ्रेम करें कि दिस फैसिलिटी जो मेल आपको ईमेल कोई प्रोवाइड करता है या कोई भी मेल सर्वर आपको प्रोवाइड करता है, बाय द हेल्प ऑफ IMAP प्रोटोकॉल ओनली दैट यू आर एबल टू एक्सेस your mail from multiple locations and the multiple machine also. The emails are not downloaded automatically, but using IMAP, user can view the heading and sender of emails and then decide to download. जो कि हम लोग के इस समय मेल सर्वर में ज्यादातर लोग जीमेल या आपका याहू या रेडिफ की बात करते हैं, तो इन सब में ये फैसिलिटी रहती है कि यू आर एबल टू सी बिफोर डाउनलोड द मैसेज दैट हेडिंग एंड द सेंडर। यू कैन आल्सो डिसाइड बाय व्यूइंग हेडिंग एंड सेंडर दैट द मैसेज इज इंपॉर्टेंट, यूजफुल फॉर यू। ये आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। देन ओनली यू आर ट्राई टू download the message in your local system or the machine. POP requires less internet usage time. IMAP requires more internet usage time because this is purely internet based protocol. So this is all about three protocol: SMTP, IMAP and POP. इसमें किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। और जितने भी आपके बड़े जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये शॉर्ट नोट्स में लिखने को आएगा, इसमें ज्यादातर शॉर्ट नोट्स लिखने को आएंगे। और मे बी देयर मे बी क्वेश्चन फ्रेम्ड ऑन अ जो कंपलसरी पार्ट है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उससे ये इनके कुछ पॉइंट बन सकते हैं कि फैसिलिटीज पूछ ली आप। पीओपी के जो ये पॉइंट्स हैं और आईमैक के पॉइंट्स अगर कंपैरिजन के फॉर्म में भी स्टडी कर लेते हैं तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ मैटर टू राइट इट एज अ नोट, टेक्निकल नोट। या नोट की बात करते हैं तो वी आर जो है डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निकल नोट। यहाँ पे टेक्निकल नोट की हम लोग बात करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई भी डाउट है। आंचल आंचल गुप्ता, आंचल ज्वाइन करके चली गई। आंचल दोबारा से ज्वाइन करो। आशीष दुबे, समझ में आया बेटा? दिख रहा है पूरी तरह से? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करो। तुम लोग का रिजल्ट आया नहीं आया? अब तुम लोग का भी आने ही वाला है। अस्मिता, हाँ तुम्हारी तबीयत ही गड़बड़ रहती है, क्या हुआ? ठीक हो कि नहीं हो? आवाज से तुम्हारे लग रहा है।
सो के उठी वो भी? हाँ। है। अच्छा। आंचल, आवाज नहीं आ रही थी क्या? तुम भी जो है ऐसा लग रहा है खांस आस रही हो, क्या दिक्कत है? कल क्लास नहीं ज्वाइन की थी, क्या प्रॉब्लम थी बेटे? क्या हो गया? अरे एक दो पार्टियां छोड़ दी जाती हैं, शादी में हर जगह जाना जरूरी थोड़ी ना है। मैं पता नहीं है, इस समय जो है सब पता चला है, सब ज्यादातर बच्चे शादी में जा रहे हैं, तो एक दो कार्ड में कोई दूसरे लोग भी जा सकते हैं, हर जगह जरूरी थोड़ी ना तुम्हारा जाना। कल तुम्हारी क्विज भी छूट गई है। हम्म। देखिए 20 जनवरी से अगर आपने नोटिस पढ़ी होगी तो 20 जनवरी से यूनिवर्सिटी इज डिसाइडिंग फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। अगर आपने पेपर न्यूज पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो उसी के हिसाब से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए आपके। आप लोग को नोटिस पता चली, मिली कि नहीं मिली? फॉर्म भरिए सभी लोग। ठीक है। अब फॉर्म भर लीजिए और रिजल्ट आने वाला है, फॉर्म भर के रखिए, उसको सेव मत करिएगा अभी। ठीक है। और रिजल्ट आने वाला होगा। उन्हें भी पता है कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो बिना रिजल्ट के आप अपने जो है उसमें मार्क्स वगैरह फिल नहीं कर पाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर के मार्क्स है। तो उसके लिए वेट करिए आप। ठीक है, रिजल्ट बहुत जल्दी आपका डिक्लेयर होने वाला है। नहीं, जो यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है वो अभी तक यही सोच रही है कि ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराएंगे। सेंटर के बारे में नहीं पता है। जो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रही है वो मल्टीपल चॉइस तो नहीं कराएगी और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं करेगी, ये समझिए। वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए ही प्लान कर रहे हैं ज्यादातर। आप अपने यहाँ अगर आप पूछिए, जो लोग अभी अभी आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो कि बैक पेपर का एग्जाम है। बैक पेपर बहुत सारे लोगों के होते हैं, बैक पेपर का एग्जाम होगा। आपसे पहले बैक पेपर की तैयारी हो रही है तो उससे क्लियर हो जाएगा कि पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा या आपका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू ट्राई फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफलाइन मोड। अब चीजें वैसे भी सब नॉर्मल होती चली जा रही हैं, तो बहुत दिनों तक ये फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है, इसमें आपका ही नुकसान है। जो पिछले बार आपके एग्जाम नहीं हुए हैं तो उसमें मैंने बच्चों के मार्क्स वगैरह देखे, तो मार्क्स उन्होंने अपने हिसाब से वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन से मार्क्स उन्होंने अवॉर्ड कर दिए, इसलिए परसेंटेज जो है वो डाउन हो गया है। समझ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमसे तो मार्क्स लिए सिर्फ इंटरनल, मतलब जो 30 मार्क्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल में जो 20 मार्क्स होते हैं, और आपको जो टोटल है वो है 70 + 30 100 मार्क्स का। तो वहां पे मैंने अभी सेकेंड सेमेस्टर का जो है रिजल्ट ऑब्जर्व किया है, वो थोड़ा सा मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है। अब आप लोग देखिए क्या कमाल करते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो उसमें है, तो कोई बात नहीं। तो अभी तो आज हम लोग ने ये 3 प्रोटोकॉल डिस्कस किए, SMTP, IMAP और POP, विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर योर मेजर प्रोजेक्ट। जब आप मेजर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इट इज आल्सो एडवाइजेबल। मैंने बताया अगर कोई अपने मेजर प्रोजेक्ट में मेल्स, एक तो बड़ा सा मेल सर्वर एक कोई बनाए, मेल सर्वर को अपना एक प्रोजेक्ट बना सकता है, उसमें इन कमांड की बहुत जरूरत होगी, या कोई एक मेजर प्रोजेक्ट ले और उसमें स्मॉल फैसिलिटी दे टू ट्रांसफर द मैसेज, जितने भी यूजर हैं, जो आपके जो ऑथराइज यूजर है, जो जो आप लॉगिन करा लेंगे, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ आप में से जो लोग रहते हैं वो हमेशा 2 तरह के लॉगिन कराते हैं, एडमिन लॉगिन और यूजर लॉगिन। बट इट इज माई एडवाइस, आप हमेशा एक लॉगिन रखिए, ये ना रखिए कि ये एडमिन करेगा ये वो करेगा। मेरी एडवाइस में ये रहता है कि आप ही अपने प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसमें क्या करिए, उसमें जो मॉड्यूल है
वो मॉड्यूल आप सबको ऑथराइज कर दीजिए कि ये वाला जो है यूजर, इसको हम ये वाला मॉड्यूल देंगे, ये वाले यूजर को ये मॉड्यूल देंगे, ये इसका काम, इसलिए इसको ये मॉड्यूल मिलने चाहिए। और जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर के अलग बनाने की जरूरत नहीं है, उसको मॉड्यूल से बता दीजिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है। समझ रहे हैं? वहां पे उसको अलग से कुछ ना दे करके उसकी पोस्ट को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए और उसके मॉड्यूल में आप इंप्लीमेंट करिए। मॉडिफिकेशन शुड बी इन देयर मॉड्यूल्स जो आपने प्रोवाइड किए हुए। तो वहां पे ये बहुत आपको जरूरत पड़ने वाली है इन इस प्रोटोकॉल से। और वो जो मैंने आपको बताया, जो मेल सर्वर का थोड़ा सा एक फीचर दे देंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट को और बड़ा कर देगा। सर्चिंग फैसिलिटी जरूर रखिए, और मेल सर्वर मतलब जो चैट वाला सिस्टम है ये आप जरूर इनेबल कर देंगे, तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके। जितने लोग भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको आंसर करने में आसानी रहेगी कि आपका प्रोजेक्ट बाकी से अलग क्यों है। इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, या कोई अदर मेल सर्वर यूज करके उस पर्टिकुलर सिस्टम या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह सेंड नहीं कर सकता है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज डायरेक्टली प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड थर्ड पार्टी मेल सर्वर्स। वो लोग बहुत आसानी से जीमेल और कोई भी याहू मेल, रेडिट मेल यूज नहीं कर सकते। दे आर बाउंड टू यूज इन ऑफिशियल आवर्स, और द जो वर्किंग उनके आवर्स होते हैं उसमें उनका मेल सर्वर बना होता है, और उसी मेल सर्वर से ही वो अपने मैसेज को ट्रांसफर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ये चीज अच्छे से आप जानिए और समझिए, ठीक है? तो ये बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है, और बहुत यूजफुल है भी। प्रैक्टिकली भी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा और इसकी फैसिलिटी आप यूज कर पाएंगे इन तीनों प्रोटोकॉल की। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है? और IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ये आप ग्रुप में मैसेज कैसे भेज सकते हैं। ये दो प्रोटोकॉल भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रोटोकॉल को भी डिस्कस करेंगे। अब अटेंडेंस लिख दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में, और लीव ना करिएगा, डोंट लीव। 2-4 लोग से मुझे बात भी करनी है। लिख दीजिए सभी लोग अटेंडेंस अभी। ओनली 22 स्टूडेंट्स, 43, 44, 47, 50 students are registered at that time or log in at that time, join the class at that time. 49, one more. एक कोई और बच गया है, रिपीट ना कर दीजिएगा क्योंकि मैं दोनों से मैच करूंगा, दोनों ही उससे मैच होंगी। और सभी लोग अपने प्रोजेक्ट टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिए सॉलिड रीजनिंग के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ। बहुत छोटे मोटे हल्के प्रोजेक्ट ना देखिए, उसमें और सोचिए कि और हम क्या फीचर्स जो हम लोग ने लेक्चर में डिस्कस किया है, MIS में हम लोग ने पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा, तो कौन से और फीचर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये ना हो कि बस आपको जो नेट पे मिल रहा है उसी के मॉड्यूल आपने देख लिया और वही आप बता रहे हैं और उसी के आपके आसपास माइंड आपका उसी में घूमने लगा, उसके आगे आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत